Indo-British Advanced Pain Clinic, Noppimayam Surgery Duram. For appointments 9155515563. ఉపేంద్ర లిమే గారు ఇవాళ మనతో ఉన్నారు. నమస్తే అండి. नमस्कारम. సార్ ఐ నో యూ డోంట్ నో తెలుగు బట్ Yeah, मुझे मालूम कि I just didn't understand anything. लेकिन you must be saying something good regarding Freddy and animal. సార్ ఐ నో యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు That's it. బట్ we are like most of our viewers will be Telugu audience. So here and there I'll be using few Telugu words. Of course. If you can't understand, if you are not able to understand anything, please let me know. I'll repeat that. No, I'm here for only Telugu audience because मेरे जितने भी दोस्त हैं, जिनके बहुत सारे दोस्त हैदराबाद में हैं, and I've received a lot of compliments from them कि यार there is a guy from your Marathi industry, he has done fabulous job, we loved his performance, please let him know. So I'm here only for Telugu audience. those Telugu audience to say thank you very much. Amazing, sir. Even after watching the film, even I was I was asking Pranay gar, producer of the film, I was asking him, please arrange interview of Upendra garu. I have to interview him for the performance he gave. Yeah, so thank you so much. he उसने भी आपका नंबर मुझे ही दिया था और बोले डोंट मिस आई ड्रीम इंटरव्यू, इट इज़ वेरी स्पेशल. That's so nice, sir. Sir, first of all, I want to tell you this. We are so glad that you have come all the way from Mumbai to Hyderabad for this interview. We My are pleasure. so glad to have you at iDream, sir. My pleasure, my pleasure. Sir, as I said in my introduction, most of the Telugu audience got surprised with your performance. You're a big actor there in Marathi, but this is your first Telugu film. Yeah, and I have dubbed in Telugu. And you done your own dubbing for the Telugu. Yeah. So people here are so amazed and surprised and loved your performance, sir. And how do you see this? Welcome to the Telugu industry. Superb, superb, superb. Never before ऐसा feedback था क्योंकि I'm receiving feedback from all over the globe. जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला था तब भी इतना फीडबैक नहीं मिला, जब ये 10-15 मिनट के रोल के लिए मिल गया तो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू संदीप SRV for giving me this opportunity. What else you can ask for? Yes, sir. Sir, after watching film, all the Telugu audience went back to their home and started searching for this Freddy Patel. Yeah. Who is this Freddy Patel? Yeah. And Vicky showed some of your data, but in your words, would you tell us more about yourself, like from where you are and your family? Basically, I am from Pune. Pune is a cultural capital of Maharashtra. So I am lucky. ऐसे एटमॉस्फेयर में अपब्रिंगिंग हुआ तो बचपन से ही एक ड्रामा से एसोसिएशन था. और द बेस्ट थिंग ऑफ मराठी इज़ मराठी थिएटर, दैट इज़ ड्रामा. इट हैज़ मोर देन 150 years history. Yes. So I've been associated with drama since my childhood. स्क्रिप्ट रीडिंग कॉम्पिटिशन्स होती थी, फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होती थी, फिर इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होती थी. सो आफ्टर 12th I shifted to dramatics only and I have done my graduation in dramatics from Pune University. Then I have completed my masters in communication studies. But there, from 87 to say 99, those 12 years, I have been associated with experimental theatre activity only, not commercial theatre. जैसे एक पैरल सिनेमा होता है, एक मेन स्ट्रीम फिल्म होती थी, श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, उनकी एक पैरल experimental stream होती थी. Same in theatre, in Marathi theatre, there is a stream which is commercial play की एक stream होती थी, and there is एक stream होती थी जहाँ exclusively experimental theatre होता था. People do a lot of experiments in theatre, so it is called as experimental theatre activity. So I have been associated with experimental theatre activity for more than 10-12 years at Pune. तो उस वक्त जो फिल्में की वो भी पैरेलल फिल्में की क्योंकि देर वर वेरी फ्यू फिल्म मेकर्स जो ऐसे फिल्में बनाते थे. एक अमोल पालेकर इज अ बिग नेम. आई हैव डन 7-8 फिल्म्स विथ हिम. देन अनदर नेम इज डॉक्टर जब्बार पटेल. Two big names. I'm lucky I got opportunity to work with them. I started my professional career very late, say after my 30s. Accidentally I came to Mumbai
one of my friends, Rasika Joshi, unfortunately, she is not no more. She's a very good actor from Marathi theatre. तो वो एक कमर्शियल प्ले करने जा रही थी मुंबई में. तो she requested me कि please उपेन you come down to मुंबई, एक कमर्शियल प्ले है but it is ये थोड़ा बोल्ड है, थोड़ा फिजिकल है. आई विल बी वेरी कंफर्टेबल अगर तू एक को एक्टर मेरे साथ आ जाएगा तो. So then I shifted to Mumbai. But initially, first 10-12 years, I've been associated exclusively with experimental theatre and experimental films only. मेरा वो पहला प्ले था जिसका नाम था सुपर हिट नंबर 1, विच वॉज एक्चुअली सुपर फ्लॉप नंबर 1 हो गया. बट एक्सपेरिमेंटल थिएटर में इतना काम किया था तो मुंबई में एक नाम हो गया था, महाराष्ट्र में एक नाम हो गया था. तो जैसे ही कमर्शियल प्ले की एडवर्टाइज पेपर्स में आने लगी, लोगों को पता चला रहे उपेंद्र लिमेज का नाउ इन मुंबई एंड ही इज़ डूइंग प्रोफेशनली, एक्टिंग प्रोफेशनली. तो बहुत लोगों से फ़ोन आए कि कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस. तो फॉर्चुनेटली उस तरह का स्ट्रगल नहीं करना पड़ा मुझे. फॉर्चुनेटली एक के बाद दूसरा काम मिलते गया. जो नाटक जिसके लिए मैं गया था, दैट वाज डायरेक्टेड बाय वेरी वेल नोन थिएटर पर्सनैलिटी ऑफ मराठी, विनय आपटे. तो मधुर भंडारकर विनय आपटे का बहुत बड़ा फ़ैन था. एंड मधुर भंडारकर वॉज प्लानिंग हिज फिल्म चांदनी बार. तो चांदनी बार वैसे देखा जाए तो माय फर्स्ट कमर्शियल फीचर फिल्म होगी. उससे पहले सब पैरेलल किया था. विनय आपटे रिक्वेस्टेड मधुर की ही इज़ अ वेरी फैंटास्टिक एक्टर, ही हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम पुणे फॉर एक्टिंग करियर एंड ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड यू मस्ट वर्क विथ हिम. एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू मधुर भंडारकर. That is how I started my professional career with Chandani Bar, with Madhur Bhandarkar. And I must say Madhur is a man of his words. क्योंकि Madhur had a very bad or hard time before Chandani Bar. He was struggling like anything. लेकिन जैसे ही तबू ने उसे हाँ कर दी और आर मोहन जैसा एक प्रोड्यूसर मिल गया और चांदनी बार जैसे ही रिलीज हो गई, वन नाइट, एक रात में मधुर वॉज अ नेशनल फिगर. तो मधुर को ऐसे लगा कि यार उपेन इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, मुझे तो इतना रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है, उपेन मस्ट गेट वेरी गुड रोल्स इन बॉलीवुड. तो मैं उसको बोलता था यार कैसे मिलेगा, चांदनी बार में हम सब लोग हैं लेकिन कुछ भी करे तेरा कैमरा सिर्फ तबू पे ही जाता है. तो हम लोगों को ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी. लेकिन उसने मुझे बोला था कि डोंट वरी उपेन, मुझे मालूम है यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर, एक दिन मैं तुझे ऐसा रोल दूंगा कि मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाउ ग्रेट ही इज़, हाउ सुपर्ब ही इज़. तो व्हेन ही वाज प्लानिंग पेज 3, माय प्रोड्यूसर, जो रोल मैंने किया, पेज 3 वाज अ टर्निंग पॉइंट. पेज 3 वाज अ गेम चेंजर फॉर मी. क्योंकि प्रोड्यूसर चाहता था कोई बॉलीवुड का बड़ा एक्टर एक करे उसमें काम. जो रोल मैंने किया, आई प्लेड कॉप देयर इन पेज 3. बट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर यू सर फ्रॉम फर्स्ट फीचर फिल्म? चांदनी के बाद में मैंने जैसे कहा कि आई वाज स्टार्टेड डूइंग मराठी फिल्म्स प्रोफेशनल. वो पैरेलली यू आर डूइंग दोस. डेली सोप चल रहा था, टेलीविजन चल रहा था, फिल्म्स चल रही थी एंड आई वाज गेटिंग गुड रोल. तो वो सब चालू ही था. लेकिन बीच में जब आफ्टर चांदनी बार 1-2-4 साल के बाद मेरे ख्याल से पेशरी की है एंड प्रोड्यूसर वांटेड, वो चाहते थे कि कोई बॉलीवुड का एक्टर बड़ा स्टार वो एक कैमियो करे. लेकिन मधुर ने कहा नो आई डोंट वांट टू वर्क विथ स्टार, आई वांट टू वर्क विथ एन एक्टर. अगर कोई करेगा तो उपेंद्र करेगा. सो आई ऑलवेज से ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स. क्योंकि उसने मुझे बोला था कि एक दिन मैं तेरे को ऐसे रोल दूंगा ना, बॉलीवुड को पता चलेगा तो क्या एक्टर है. तो पेस्ट्री रिलीज हो गई एंड वन डे मधुर कॉल्ड मी अप एंड सेड कि कल मुझे RGV राम गोपाल वर्मा पार्टी में मिले थे एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट यू ओनली. कौन है ये बंदा, वेयर इज ही फ्रॉम, कहाँ से आया, इतना बढ़िया एक्टर मेरे को मालूम कैसे नहीं. तो आई हैव गिवन यू अ नंबर टू RGV एंड वो मेरे बॉस है, तो RGV का कॉल आएगा तो प्लीज़ गो एंड सी हिम एंड यू मस्ट वर्क विथ हिम.
और नेक्स्ट डे मुझे आरजीवी का मैसेज आ गया कि हाय दिस इज राम गोपाल वर्मा, आई लव योर परफॉर्मेंस इन पेस्ट्री, वुड लाइक टू मीट यू। तब मैं पुणे में रहता था। मधुर टोल्ड मी यू स्टे इन पुणे, व्हेनेवर यू कम टू मुंबई प्लीज कम एंड सी मी। फिर एज आई सेड कि पेस्ट्री वॉज अ गेम चेंजर। तो उसके बाद फिर आरजीवी के साथ मैंने 4-5 फिल्में की। फिर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डायरेक्टर्स आई हैव वर्कड विद, दैट इज राम गोपाल वर्मा। Like in what sense? He's making or Yeah, as a director. as it is? His approach is different. Yes. Very interesting director to work with. एक एक्टर डायरेक्टर की केमिस्ट्री रहती है ना, हाउ यू लुक एट द कंटेंट, हाउ यू लुक एट द कैरेक्टर, फिर वो इम्प्रोवाइज कैसे करते हैं, टाइप्स वाला। हालांकि एक ही फिल्म बहुत अच्छी वर्क होगी, दैट इज सरकार राज। आई प्लेड कांतिलाल वोरा इन सरकार राज। वो भी लास्ट टाइम वेरी लास्ट मोमेंट मेरा सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि एक्चुअली एक हैदराबाद, दे वर शूटिंग इन हैदराबाद ओनली, रामोजी फिल्म सिटी में सेट लगाया था। और द एक्टर हु वाज प्लेइंग कांतिलाल वोरा, वो बच्चन साहब के सामने पूरा फ्लॉप हो गया। उनके मुंह से डायलॉग ही निकल नहीं रहे थे, एंड शूटिंग पैकअप हो गया, एंड वी वाज वेरी अपसेट। तो रामू प्रॉमिस्ड बिग बी कि नो डोंट वरी सर, आई विल गेट वेरी गुड एक्टर फॉर दिस रोल, एंड ही कॉल्ड मी अप। बोला कि बिग बी वॉज वेरी अपसेट, आई प्रॉमिस्ड हिम कि आई विल गेट गुड एक्टर फॉर दिस रोल, एंड नाउ आई वांट यू टू प्ले दैट रोल, डोंट टेक इट अदरवाइज। वो तुम्हारे उम्र का रोल नहीं था, इसलिए मैंने पहले तुम्हें नहीं बोला था। देन वी डिड सम लुक और इसका एक गेटअप करके देखा। आई मस्ट बी 40-42 एट दैट टाइम, और वो कैरेक्टर का एज अराउंड 58-60 वाला कैरेक्टर था। तो बियर्ड और एक वाइटनर लगा के उसे एक गेटअप बना के वो एक कांतिलाल वोरा किया। तो दैट इज हाउ माय बॉलीवुड जर्नी शुरू हो गई। That's a quite journey, sir, actually, if you see. Director has said, I don't need a star, I need an actor. Actor, yeah. I have heard, like, many actors, theatre actors told me that they never want to get into films because they don't believe in feature films acting. They are very much satisfied with the theatre work, and they never want to get into the films. इस तरह का एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझ में भी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, because as I said earlier, I have been associated with experimental theatre for more than 12 years. उसमें one of the best actor of his generation टाइप वाला एक टैग भी आया था, क्योंकि जो भी प्ले करता था वो अच्छा होता था, एक अच्छा रिकग्नाइजेशन मिलते थे, बहुत सारे अवार्ड्स मिलते थे। तो उससे एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है परफॉर्मर में, एक्टर में। फिर उससे लगता है यार हम जो करते हैं वही सही है, वो कमर्शियल वो हम नहीं करेंगे, टाइप वाला एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना। लेकिन एवरी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी हैज़ सर्टन लिमिटेशन। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारा ग्रुप 50-60 लोगों का था, और बाद में 8-10 साल के बाद हम 2 ही लोग रह गए। एक राइटर था संजय पवार, और मैं एक्टर था। बाकी सब लोग प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। लड़कियों की शादी हो गई, वो यूएस में चले गई, लड़कों जितने भी लड़के थे वो सिक्योर जॉब्स देख के उधर चले गए, हम ही नाटक करते रहे। फिर मुझे जब रसिका का फ़ोन आया, जैसे मैंने पहले बताया था, तो मुझे ऐसे लगा कि यार जो सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझ में है, लेट मी गो देयर एंड लेट मी चेक माई सेल्फ। अगर मैं सचमुच में अच्छा एक्टर हूँ तो मैं कमर्शियल में भी सक्सेस हो जाऊंगा। अगर मैं वो नहीं कर पाया तो आई एम नॉट दैट गुड एक्टर। Just get out of your comfort zone. Yeah. So मैं बोला कि it is a new beginning, let's start, love all, start again टाइप वाला खुद को समझाया था। Everything went smoothly, क्योंकि एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स एज आई सेड कि वो डेस्टाइन भी है कि जैसे विनय अपटे और मधुर भांडारकर का एक कॉम्बिनेशन होना, फिर विनय अपटे सर ने उनको रिक्वेस्ट करना, फिर मधुर का और मेरा एक केमिस्ट्री बन जाना, उसने मुझे प्रॉमिस करना कि मैं तुझे एक दिन ऐसे रोल दूंगा। एज आई सेड ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड ही गेव मी दैट पेस्ट्री वाला कॉप। पेस्ट्री वाले कॉप से फिर आरजीवी की वजह से बच्चन साहब के साथ काम। सो नथिंग वॉज प्लान्ड। As I said, मैं हमेशा कहता हूँ कि आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग, कभी भी कुछ नहीं किया। You just keep on trying and try to give your best. Let someone else like Madhur Bhandarkar, Ram Gopal Verma, SRV, let them plan something for you. They are there. You just keep on trying and try to give your
बस लोग हैं आजू बाजू में, वो देख रहे हैं, वो उनको पता है, दे आर सेंसिबल पीपल। अगर आपके लायक कुछ अच्छा काम है तो वो आपको मिल जाएगा। इट इज़ ओनली योर परफॉर्मेंस जो आपको अच्छा काम देता है, नॉट गुड मॉर्निंग वाला मैसेज, नॉट हैप्पी दिवाली वाला मैसेज, नॉट हाउ आर यू, सो नाइस टू फॉलो वाला कॉल और मैसेज। इट इज़ ओनली योर परफॉर्मेंस जो आपको एक अच्छे काम की प्रोबेबिलिटी ओपन करता है। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन। Sir, you're a national award winner, and you've been part of 12 films which won national award. But still, there are set of people in the world, not only in India, in the world, they don't consider acting profession as serious, and they don't give the respect an actor deserve. How do you see this, sir? एक्चुअली यू कैनॉट हेल्प इट। मेरा भी अपब्रिंगिंग टिपिकल मराठी मिडिल क्लास फैमिली से हुआ है। तो जब मैंने 12th साइंस छोड़ के आई शिफ्टेड टू ड्रामेटिक्स, माई पेरेंट्स वेयर लाइक क्या भीख मंगे धंधे कर रहा है यार तू, क्या करेगा यार, वो तू कर रहा, तेरे को करना है ना, एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो पहले तेरी पढ़ाई पूरी कर, अच्छा जॉब सिक्योर कर ले, उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें कर लेना थोड़ा एक्टिंग वैक्टिंग का शौक। तो दैट यू कैनॉट हेल्प इट। लेकिन वो सिचुएशन अभी चेंज हो रही है। जो एक ज़माने में एक पेरेंट्स की लाइन ऑफ थिंकिंग थी, स्टाइल ऑफ थिंकिंग थी, मेरे जनरेशन के बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं कि मेरे बेटी को डांस में करियर करना है तो पेरेंट्स बोलते हैं गो, जहाँ तेरे को बेस्ट एजुकेशन मिलता है वहाँ तू जा, थिएटर करना है तो जहाँ तुझे बेस्ट एजुकेशन मिलता है वहाँ तू जा। तो नाउ टाइम हैज चेंज्ड। अभी वो अप्रोच भी चेंज हो गया है और ये भी चेंज हो गया है। लेकिन जब मैंने ये सोच लिया था कि मैंने एक्टिंग या डायरेक्शन, इन थिएटर आई वाज डूइंग बोथ, आई वाज इन डायरेक्शन एंड एक्टिंग आल्सो। तो उस ज़माने में ये बहुत मुश्किल था कि नहीं, पहले एक एजुकेशन कंप्लीट करो, अच्छा जॉब सिक्योर कर लो, उसके बाद टाइम पास के लिए एक्टिंग कर लेना, नॉट एज अ प्रोफेशन। जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ से एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का या लड़की आती है, वहाँ उतना क्या सपोर्ट नहीं करते, नहीं लिबर्टी नहीं थी, सपोर्ट नहीं करते थे। फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स को मालूम था कि मैं उनकी सुनने वाला नहीं हूँ तो उनके पास कोई ऑप्शन ही था नहीं। तो वो फिर बोले कि तेरे को जो करना है वो कर। बट आई एम हैप्पी कि अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम दे आर नो मोर। लेकिन मेरी माँ ने मेरा सक्सेस देखा, मेरे डैड ने मेरा नेशनल अवार्ड देखा, तो आई एम हैप्पी। But during the initial days, was it difficult for you, sir, financially? Because theaters में कुछ मिलता नहीं। Of course, it was very difficult। और उसमें क्या होगा, मेरी शादी भी जल्दी हो गई। When it was a love marriage, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था और मेरी बीवी मेडिकल सेकंड ईयर में थी। तो शादी होने के बाद हम दोनों डब्बा लेके टिफिन लेके कॉलेज में जाते थे अपने अपने। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन फैमिली वो सपोर्ट था, वो वाला सपोर्ट था क्योंकि अदर। और वो क्या है, उन दिनों में, उस फेज में लायबिलिटीज भी बहुत कम रहती है। माँ बाप का घर है, 2 वक्त का खाना मिलता है, तो देयर आर एक्सपेंसेस इतने थे ही नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूँ एज फार एज स्ट्रगल इज कंसर्न, ओ दैट वाज अ हार्ड टाइम, वी हैव बीन थ्रू दैट एंड सो। मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगा आई हैड अ वेरी बैड टाइम, बिकॉज एवरी एक्टर, एवरी आर्टिस्ट वो एक रोमांटिसिज्म में रहता है ना कि यार आज खाने को कुछ नहीं मिला, फिर भी वो हैप्पी है। So I have enjoyed each and every beat of that struggling period। सफर आपकी फैमिली होती है, आपकी बीवी होती है, तो योर पार्टनर ज्यादा सफर होता है डिपेंडेंट ऑन यू, बिकॉज यू आर रोमांटिक। तो आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी पार्टनर भी उतनी रोमांटिक हो। They live in reality, we live in our dreams। तो बहुत बार मेरी बीवी मुझे वो रियलिटी का इंजेक्शन देती है। जैसे मैंने कहा कि आई एम द फर्स्ट एक्टर हु हैज गॉट नेशनल अवार्ड
फॉर मराठी फिल्म, मराठी एक्टर को मराठी फिल्म के लिए नेशनल मिलने वाला। तो उसके बाद जिस तरह की फिल्में मैं करने चाहता था वो मेरे पास आ नहीं रही थी, और जो मैं नहीं करना चाहता था वो हर रोज एक स्क्रिप्ट आता था। तो आई रिजेक्टेड ऑलमोस्ट 35-37 स्क्रिप्ट्स फिल्म्स। तो माय वाइफ सेड एटलीस्ट इसमें से एक तो ले ले जो कम खराब है, क्योंकि घर कैसे चलेगा फिर। तो व्हाट आई मीन टू से, शी इज वेरी प्रैक्टिकल। बहुत बार एक्टर आर्टिस्ट की पार्टनर भी प्रैक्टिकल रहती है, और आर्टिस्ट अपना रोमांटिसिज्म में आई हैव रिजेक्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टाइप वाला। फॉर दैट मैटर ये एनिमल का फ्रेडी भी डेस्टाइन था, क्योंकि वन फाइन मॉर्निंग आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम संदीप सर्स असिस्टेंट जितेंद्र भोसले, एंड ही कॉल्ड मी, सर टी सीरीज की फिल्म बन रही है, संदीप रेड्डी इज डायरेक्टिंग द फिल्म, रणवीर इज हीरो ऑफ द फिल्म, देयर इज वन सीन, कैन यू डू दिस? तो आई सेड नॉट इंटरेस्टेड. Because it's one scene. Okay. So I'm doing good in my regional films. I'm going happy with doing small content-oriented films. तो it is not necessary कि रणवीर है, टी सीरीज की फिल्म है, तो एक सीन के लिए मैं जाऊँ. तो मैंने 2-3 बार उसको नहीं बोला था. तो एक दिन फिर जितेंद्र ने फ़ोन करके बोला कि संदीप सर चाहते हैं कि आप ही वो रोल करें. क्या आप उनके साथ एक मीटिंग के लिए आ सकते हैं? वो खुद आपको कुछ फिल्म के सीन के बारे में नरेशन देना चाहते हैं. तो आई सेड ओके, क्योंकि तब मुझे पता चला कि ही इज द डायरेक्टर ऑफ अर्जुन रेड्डी. और अर्जुन रेड्डी, बट डिड यू वॉच अर्जुन रेड्डी बिफोर? ऑफ कोर्स अर्जुन रेड्डी मैंने तेलुगु वाली अर्जुन रेड्डी देखी थी, नॉट कबीर सिंह. तो अर्जुन रेड्डी देख के मुझे ऐसे लगा यार, Who is this director? Yes, क्योंकि जब मेरे कॉलेज दिनों में राम गोपाल वर्मा की वो पहली वाली शिवा देखी थी, तो उसका एक इम्पैक्ट था, उसका एक इम्प्रेशन था. अरे फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, द वे ही कंसीव्ड यूथ साइकी, और जिस तरह से टेक्निकली एग्जीक्यूट किया था, द सेम थिंग हैपेंड व्हेन आई सॉ अर्जुन रेड्डी. और मैं बोला यार ये कौन है संदीप रेड्डी वांगा? दिस SRV इज RGV ऑफ दिस जनरेशन. SRV RGV. तो मुझे ऐसा लगा कि ये इस जनरेशन का RGV है. तो मैं बोला कि यस, लेट्स गो एंड मीट हिम. इंटरेस्टिंग है, मीटिंग कर लेते हैं, बिकॉज इज अ इंटरेस्टिंग डायरेक्टर, एंड इट इज ऑलवेज प्लेजर टू मीट सच पीपल. तो मैं बोला कि मीटिंग कर लेते हैं और बाद में बोल देंगे, ना बोल देंगे. बट व्हेन आई मेट हिम फर्स्ट टाइम, और जब SRV ने मुझे सीन नरेट किया, तो फिर कोई भी सेंसिबल एक्टर वो रिजेक्ट नहीं करता, क्योंकि the way he narrated, the way he narrated कि he said कि this is high voltage action sequence, interval point है, and it begins with your sequence, और वो पूरा sequence उन्होंने बताया मुझे. तो मैं, and at that time I was shooting another Hindi film, Excel, फरहान अख्तर, he has produced that film. तो उसकी मडगांव एक्सप्रेस जो अभी आएगी मार्च में, तो मेरी सब स्कैटर डेट्स उनके पास थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो संदीप को मैं बोला कि यार मैं कर तो लूँगा, लेकिन मेरे पास डेट होनी चाहिए. और दूसरी बात यह है कि संदीप को सरकार राज का कांतिलाल वोरा उसके दिमाग में था, और वो बोला कि जो बच्चन साहब के सामने ऐसा कैरेक्टर कैरी कर सकता है, तो वो मराठी में उपेंद्र लिमया ही चाहिए. तो फिर संदीप का एक ऐसा है कि उसका एक खुद का एक स्टडी चालू हो जाता है. फिर उसने गूगल पे जाके उपेंद्र लिमया सर्च मार के पिक्स में जाके मेरी एक इमेज निकाल के मुझे दिखाई, और जिसमें मुझे मूंछ बीच नहीं थी और ये नहीं थी, और बोला कि ये उपेंद्र, ये he showed your photo to you, to me, and he told me कि I'm looking this उपेंद्र लिमया, इस उपेंद्र लिमया एज अ फ्रेडी. तो मैं बोला इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, आई हैव ऑलरेडी कमिटेड अनदर फिल्म, और मेरी स्कैटर डेट्स है उनके पास 3 महीने, तो आई कैन नॉट डू दिस. ओके डोंट वरी, विल वर्क ऑन लुक, विल वर्क डेट्स एंड लुक्स, बट आप कर रहे हो? तो मैं बोला कि यस, मैं स्पेशल अपीयरेंस करूँगा. तो दैट इज़ हाउ इट बिगन्स. तो मैं जैसे मैंने कहा ना कि
आई हैव नॉट स्ट्रगल एट ऑल फॉर दिस फ्रेडी, इट वॉज डेस्टाइंड। आज मुझे मेरा बेटा बोलता है कि यार बाबा, तू अगर मीटिंग नहीं करता संदीप सर से तो एक बेहतरीन कैरेक्टर निकल जाता तेरे करियर से, तू बहुत रिग्रेट करता ना। मैं बोला हाँ, मैं रिग्रेट करता, सचमुच में रिग्रेट हो जाता अगर ये फ्रेडी मुझे करने नहीं मिलता तो।